ओके स्टूडेंट्स, आज हम एक नए टॉपिक के साथ करने वाले हैं। हमने लास्ट में हमने इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के टॉपिक को पढ़ा था। आज हम उसी टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। लास्ट हमारा जो टॉपिक था पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज था। आज अगर ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि एक ग्रुप ऑफ चार्ज हो, बहुत सारे चार्ज आपकी इस प्लेन के अंदर हैं, जैसे ये प्लेन है, इसमें बहुत सारे चार्ज ऐसे रखे हुए हैं कि एक चार्ज यहाँ पे है Q1, एक चार्ज यहाँ पे है Q2, एक यहाँ पे है Q3, यहाँ पे है Qn। ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हैं इस प्लेन में, और जो पॉइंट चार्ज है वो लार्ज नंबर में है। तो हम किसी पॉइंट P के ऊपर अगर पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहें तो हम पोटेंशियल इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास मेथड होता है सिंपल। सिंपल मेथड क्या है कि पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज हमें मालूम है, हम पोटेंशियल इंडिविजुअल पॉइंट चार्ज की कोई पॉइंट के ऊपर कैलकुलेट कर लेंगे। फिर ये स्केलर क्वांटिटी है तो सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा से इसको जोड़ देंगे और हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे ग्रुप ऑफ चार्ज की। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हाँ, वीडियो को पूरा देखें, आपको तभी समझ में आएगा। और इस चैनल को अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसका बेनिफिट मिले। तो देखिए, आज का जो मैं टॉपिक जिस पे चर्चा करूंगा, पोटेंशियल ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ चार्ज। हमने क्या किया कि एक प्लेन के अंदर बहुत सारे पॉइंट चार्ज हैं, Q1, Q2, Q3 एंड Qn। there will be the n charge distribute over the plane having position vector, or we can say that R1, R3, सेकेंड चार्ज से डिस्टेंस है वो R2, और nth चार्ज से डिस्टेंस है वो Rn। ये इनकी पोजीशन वेक्टर हैं। हम इनकी पोजीशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं P पॉइंट से, और P वो पॉइंट है जिसपे हम नेट पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। तो हम लिखते हैं लेट अस टेक n पॉइंट चार्ज Q1, Q2, Q3 dash Qn having position, having distance R1, R2, R3 dash Rn from point P where net, or we can say the total potential to be calculated as shown in diagram. We find out potential at point P due to point charge Q1 is, we represent this potential as V1, and we know very well these are the point charge, and this point P lie in the field of these all charge. So individual charge affect the potential at point P. So we calculate individual potential due to Q1, due to Q2, due to Q3 and Qn. And we know very well the formula V is equal to KQ upon R. This is the formula for electric potential due to a point charge. So we mention here the value V1 by using formula is K, charge is Q1 upon distance is R1. This is first equation in vacuum. We can say that in vacuum. So potential due to Q2 charge at point P is, so second
charge have the potential K, value of charge is Q2 upon R2. Similar V3 represent the potential due to third charge is K Q3 upon R3 dash 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 Vn is equal to K Qn upon Rn. We put the value in journal formula. Net potential, or we can say the total potential at point P is V is equal to, सब पोटेंशियल को हम ऐड कर देंगे क्योंकि सारी की सारी अफेक्ट करती हैं हमारे इस पॉइंट को, और इंडिविजुअल वैल्यू इनकी ही वैल्यू हमने रख दी. So this is the simple law of algebra. By using simple law of algebra, net potential is sum of the potential individual potential. So we put here the value as V is equal to, we put from equation first, second, third, V is equal to value of V1. From here we get K Q1 upon R1 plus value of V2. From here we put K Q2 upon R2, value of V3. From here we put as K Q3 upon R3 plus and plus on value of Vn. From here we put this is equal to K Qn upon Rn. We take common K because it is same for all terms. We take the common K and remaining part became Q1 R1, Q2 R2, Q3 R3 dash 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 Qn Rn. So we write this formula in compact form also. This is the answer. This is the answer. We put in compact form as V is equal to A. We use the summation sign because these are the regular term and having difference only 1, 2 and 3. There is a regular trend for these term and have the equivalent value, but difference is that here is Q1 R1, here Q2 R2, Q3 R3 dash dash dash. We write into compact form with the help of summation. This summation we stand a arbitrary constant, any indices I stand for, this is the starting point 1 and ending part is n. We write here n and we replace I is equal to 1. Also we write here I upon R of I. This is the net potential due to a group of charge. This is very important topic. In case of numerical, you understand these things. In case of numerical, you must take the sign of the charge. If charge is positive, we use positive charge. Charge is negative, we use negative sign. In case of numerical, by taking sign of charge, that is compulsory because potential is a scalar quantity. To calculate the scalar quantity, negative and positive sign must be included. This is the additive property. So this is the numeric topic, potential due to a group of charge. Now we discuss a numerical based on this topic. With what type of numerical asked into exam generally. देखो हम न्यूमेरिकल पे चर्चा करते हैं, काफी इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है और एक ही न्यूमेरिकल से मैं बहुत सारे न्यूमेरिकल की चर्चा करूंगा कि बेस इसको लेके चलूंगा मैं. ये कह रहा है कि 4 चार्ज 100 माइक्रोकूलम माइनस 50 माइक्रोकूलम 20 माइक्रोकूलम एंड 60 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 2 मीटर. एक स्क्वायर दिया हुआ है, उसके कॉर्नर पे ये चार्ज रखे हैं और उस स्क्वायर की जो साइड है वो 2 मीटर है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करनी है सेंटर ऑफ स्क्वायर पे. सबसे पहले हम डायग्राम को इमेजिन कर लेते हैं कि इसमें डायग्राम कैसा होगा हमारा. हमने इमेजिन किया कि एक स्क्वायर है, ये इस तरह का हमने एक स्क्वायर ले लिया जिसकी साइड है 2 मीटर.
ये साइड भी 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है। ये कॉर्नर ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी। हम इमेजिन कर लेते हैं, पी क्यू आर एस भी ले सकते हो, आपकी इच्छा पे है ये सब। यहाँ जो चार्ज है वो 100 माइक्रोकुलाम का है, यहाँ पे बी पॉइंट पे -50 माइक्रोकुलाम का है, यहाँ पे आपको 20 माइक्रोकुलाम रखा हुआ है और यहाँ आपको -60 है, सॉरी -60 माइक्रोकुलाम है। हम इसको माइनस का ले लेते हैं। ये आपके चार्ज रखे हुए हैं। इसका सेंटर यहाँ होगा, दिस सेंटर इज O। इस सेंटर O के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले हम A चार्ज के लिए पोटेंशियल निकालेंगे, फिर B के लिए निकालेंगे, C और D के लिए। तो हमें इस डिस्टेंस का पता होना चाहिए, ये डिस्टेंस का, फिर इससे निकालेंगे तो इस डिस्टेंस का, इसके पता हो तो इसका, और इससे पता हो तो ये डिस्टेंस हमें पता होना चाहिए। तो हम इसमें सॉल्यूशन क्या देखेंगे, सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालना चाहेंगे। डिस्टेंस इन डायग्राम, अब डायग्राम देखिए, सेंटर से सारे कॉर्नर इक्वी डिस्टेंस होते हैं। इन OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OD, ये सब गिवन है आपको। क्योंकि जब आप स्केयर की स्ट्रक्चर को देखते हैं तो स्केयर की पहचान यही है कि वो सेंटर से सारे कॉर्नर उसके इक्वी डिस्टेंस है और सारी साइडें एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और इसके डायगोनल दोनों इक्वल होते हैं। ये स्केयर की पहचान है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डायगोनल निकालेंगे डिस्टेंस AC, और AC का होल ऑफ स्क्वायर, दिस इज द डायगोनल, यानी ट्रायंगल यूज कर लें, इन राइट एंगल ट्रायंगल। एक बार समझ लें, बाद में आप डायरेक्ट कर सकते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल AB एंड C, ये हमने ट्रायंगल ले ली। इसमें AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, दिस इज द हाइपोटेन्यूज ऑफ दिस ट्रायंगल, AB स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर, और AC हमें कैलकुलेट करना है और ये सारी वैल्यू किसके बराबर होगी, AC अपॉन 2 के बराबर हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट बात है, डायगोनल का सेमी पार्ट होता है ये A स्क्वायर है, ये भी A स्क्वायर है और रूट रख दिया, यानी ये 2 रखोगे, इसको भी 2 रखो, ये 2 रख दिया। हमें 2 सेंटीमीटर साइड दे रखी है तो हम 2 रख सकते हैं। ये 4 और 4 8 का रूट निकालोगे 2√2 मीटर हो जाएगा। और जब इसको इसमें इक्वेशन फर्स्ट में रखोगे तो सारे डिस्टेंस के आगे आपके फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या बन जाएगा, OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OD इज इक्वल टू 2√2 अपॉन 2 मीन √2 मीटर। ये हम फाइंड आउट कर लेंगे यहां से। जैसे ये निकला, अब आपको क्या काम करना है, पहले पोटेंशियल VA निकाल लो। ए कॉर्नर की फॉर्मूला आपको ध्यान है, KQ अपॉन R होता है। तो फॉर्मूला मैं एक बार लिख देता हूं, K चार्ज आपका कितना है 100 माइक्रोकुलाम, प्लस का है तो प्लस का ले लिया, और डिस्टेंस OA। और जब वैल्यू पुट करते हैं, K की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ है, ये 100 × 10⁻⁻6 है, और ये डिस्टेंस आपका √2 मीटर है। ऐसे ही VB निकाल लो। VB क्या हो जाएगा, K -50 माइक्रोकुलाम अपॉन OB, ये भी सेम वैल्यू हो जाएगी 9 × 10⁻⁹ इंटू माइनस है तो माइनस का साइन रहेगा, 50 माइक्रो होता 10⁻⁻6 और डिस्टेंस √2। फिर VC निकाल लो सिमिलर, वो भी क्या हो जाएगी, K की वैल्यू तो 9 × 10⁻⁹, चार्ज प्लस में है तो 20 माइक्रो रख दो, अपॉन डिस्टेंस सेम है ही, और VD और निकाल लो, वो भी क्या हो जाएगा 9 × 10⁻⁹। चार्ज देख लीजिए माइनस का है तो -60 10⁻⁻6 अपॉन √2। हम सारी सिचुएशन ऐसी कैसे रख दें। नेट पोटेंशियल किसके बराबर हो जाएगी, टोटल पोटेंशियल एट O इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, और वी कैन से दैट VA VB VC और VD, हम ऐसा कह देंगे। अब सब में देख लीजिए 9 × 10⁻⁹ 9 सब में कॉमन आ रहा है, तो हम वैल्यू रखेंगे तो 9 × 10⁻⁹ कॉमन आ गया। ये टर्म सब में एक जैसी है, आप चेक कर सकते हैं।
सेकंड, ये 10⁻⁻6 भी सब में कॉमन है, तो इसको भी हम बाहर रख लेंगे 10⁻⁻6 इनटू, बाकी वैल्यू अलग अलग है, प्लस का 100 है, माइनस का 50 है, प्लस का 20 है, माइनस का 60 है, डिवाइडेड बाई, सब में नीचे टर्म देखो √2, सब में एक जैसी टर्म आई हुई है, तो √2 की वैल्यू हम यहाँ रख लेंगे √2। अब इसको सोल्व करना है, जैसे ही सोल्व करेंगे तो आप क्या पाएंगे, ये प्लस का है, ये प्लस का 120, माइनस के 110, तो 10 बचेगा। तो इसको सोल्व करें तो 9 इंटू 10, ये प्लस की 9 है, ये माइनस की 6 है, तो प्लस की 3 अपॉन √2 इंटू, यहां से क्या बच गया आपका, प्लस का 10, तो आप देखेंगे तो ये बचेगा आपका 9 अपॉन √2 इंटू 10⁻⁴ वोल्ट, ये आपका आंसर है। डिवाइड कर लें इससे, इस तरीके से इसको सोल्व कर देंगे। मैं अब इसी से रिलेटेड बहुत सारी बातें आपको बता देता हूं। जब भी सेंटर पे निकालना हो और कंपटीशन एग्जाम में आप बैठे हैं, वहां तो आपके पास इतना बड़ा टाइम होगा नहीं कि इसको हम ऐसे कैलकुलेट करें, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का एक सिंपल सा भी तरीका है कि अगर इक्वी डिस्टेंस पॉइंट है, यानी आप सेंटर पे निकालना चाहते हैं, ध्यान देंगे इस बात पे, अगर आप सेंटर पे पोटेंशियल निकालना चाहते हैं तो इन सब चार्ज को जोड़ के देख लीजिए। अगर इनको जोड़ने से आंसर 0 आता तो पोटेंशियल 0, नहीं तो जो भी वैल्यू आती है वही हो जाएगी। इसका मैं शॉर्ट मेथड और समझा देता हूं आपको, आप ये मेरे को लगता है समझ में आ गया होगा। इसका मैं सेकंड मेथड भी आपको बताता हूं कि आप कम समय में कैसे इसको सोल्व कर सकते हैं। देखिए हम इसको दूसरे तरीके से भी देखते हैं कि अगर आपको पोटेंशियल निकालनी हो तो आपका फॉर्मूला क्या था, K Q1 अपॉन R1, Q2 अपॉन R2, Q3 अपॉन R3 डैश 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 था, और यहाँ 4 ही चार्ज हैं तो Q4 अपॉन R4, और डिस्टेंस सेंटर से सारे के सारे बराबर हैं। ये अगर R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, तो आप देख रहे हैं सारे डिस्टेंस सेम है तो कॉमन आ जाएगा K अपॉन R, और ब्रैकेट में आपका क्या हो गया, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, ये वैल्यू आपके पास होंगी। आप चार्ज को सम करके देख लीजिए, चार्ज को सम करेंगे, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का, ये और ये प्लस के 120 और ये माइनस के 110, तो 10 आ जाएगा। तो यहाँ आपको इसका पार्ट का सॉल्यूशन मिल जाएगा। यही क्वेश्चन अगर ऐसे मिल जाए आपको कि यहाँ प्लस का Q है, यहाँ भी प्लस का Q है, यहाँ माइनस का Q है, यहाँ माइनस का Q है, इसके सेंटर पे निकालिए, तो कैलकुलेशन करने से पहले एक बार आप जर्नल टोटल चार्ज निकाल के देख लीजिए। टोटल चार्ज किसके बराबर हो गया, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये 0, तो पोटेंशियल सेंटर पे कितनी हो जाएगी, अल्टीमेट 0 हो जाएगी। यही क्वेश्चन आपको ट्रायंगल में दे दे ऐसे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये भी साइड ए है, ये भी साइड ए है, ये भी ए है, यहाँ +2Q रखा है, यहाँ -Q रखा है, यहाँ -Q रखा है, इसके सेंटर पे पूछ ले तो हमें पता लग गया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेंटर है, ये बराबर डिस्टेंस पे होता है सब पॉइंटों से, तो टोटल चार्ज देखो इनका कितना हो गया, +2Q -Q इज इक्वल टू 0। तो यहाँ ओ पॉइंट पे पोटेंशियल कितनी हो जाएगी, 0। इस तरीके से भी हम इनको सोल्व कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपके डिस्टेंस अलग अलग मिल जाए, तो उस समय आप इस फॉर्मूले का प्रयोग कर लें। नहीं तो ज्यादातर अगर सिमेट्री बनती हो, इक्वी डिस्टेंस हो, तो आप चार्ज का सम करके देख लें। अगर चार्ज का सम 0 होता है तो ऑलरेडी आंसर 0 हो जाएगा पोटेंशियल का। देखिए हम एक नए टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। नया टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसका ये सिंपल सा मीनिंग है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा, उसके कारण हम पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे किसी भी पॉइंट पे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट, और पोजीशन है उसकी R और थीटा। हम इस सिचुएशन को लेके चलेंगे, अपने आप हम उसके लिए इक्वेटोरियल और एक्सियल लाइन की बात कर लेंगे। देखिए बड़ा अच्छा टॉपिक है, इसको समझें, और जब तक इसको समझेंगे नहीं आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, और कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आप टॉपिक पूरा देखें, ये ध्यान रखें। तो हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसे ले लिया, एक पॉइंट चार्ज यहाँ है ए पॉइंट पे, एक पॉइंट यहाँ है। इलेक्ट्रिक डाइपोल की पहचान यही होती है कि एक +Q होता है, एक -Q होता है, इसका सेंटर O है,
और जिस पॉइंट पे हम फील्ड पोटेंशियल निकालना चाहते हैं वो आपके सेंटर से r थीटा डिस्टेंस पे है, क्योंकि सेंटर जो लेते हैं हम डाइपोल का वो इसके मिड में होता है, और जिस पॉइंट पे हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करनी है वो पॉइंट हमने यहाँ ले लिया, और उस वो एंगल थीटा बनाता है और उसका डिस्टेंस है वो r है, पोजीशन r है। इस पॉइंट पे हम पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहेंगे। अगर हमें इस चीज का पता लग जाए तो थीटा की वैल्यू अगर 0 रखोगे तो ये पॉइंट यहाँ मिल जाएगा, ये एक्सियल हो जाएगा। अगर थीटा को 90 रखोगे ये पॉइंट यहाँ चला जाएगा, तो इक्वेटोरियल लाइन में बन जाएगा। तो हम दोनों केस थीटा के विद रिस्पेक्ट टू देख लेंगे। अब हम एक जर्नल रिलेशन पढ़ने की कोशिश करते हैं यहाँ, और टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए हम यहाँ लिखते हैं, let us consider an electric dipole consist positive q charge at point A, consist positive charge at A and negative q charge at B point. Separation between them is this distance is A and this is also A, and distance between them is 2A. So electric dipole moment is, electric dipole moment we know very well, electric dipole moment represented by P and is equal to magnitude of either charge into distance between them. This is electric dipole moment. This is first equation. We want to calculate electric potential. We find potential due to dipole at point P that is r distance from center O and inclined angle theta. This is the situation of the point P where we want to calculate electric field, so electric potential. Position of point P is, it is r distance from the center and make angle theta with the electric dipole axis or its axial line. So its position is this. Electric potential at point P we know very well. Electric potential due to point charge is kq upon r. So there are 2 point charge. This is also point charge and this is also point charge. First we calculate electric potential due to this positive charge at this point P. Then find out the potential due to this negative charge, and by adding these two potential, that will be the total potential at point P, because 3 points lie inside the field of plus and minus q. So we take the distance, this we consider this distance be r1. So we find potential. Here I will write potential at point P due to positive q charge is, potential का फॉर्मूला हमें पता है, V1 is equal to, this is first potential due to positive charge, formula is K, charge is plus Q, we take their sign also, and distance is R1. This is first equation and we write as K Q upon R1. This is first equation in vacuum.
in vacuum. Similar potential at P due to minus Q charge is, this is V2 and K into minus Q upon distance. We take the distance of point P from this. This distance is R2, we can say that. This distance is R2, we can say that. This is not the normal. If you think that this is normal, it is not the normal. It is slightly at any angle theta. This here negative Q charge. This distance is R2. We write the formula and put the value of distance here R2, and positive and negative charge we mention here because electric potential is scalar quantity. So this is minus K Q upon R2. This is second equation. Then total potential or net potential, total potential at point P is V is equal to V1 plus V2. Put value from equation first and second. We get this is KQ upon R1 and this is minus KQ upon R2. And we solve this, we get KQ as common, and by solving this, it became LCM is R1, R2, and here R2 minus R1. This is third equation, we can say that. This is the total potential at point P. But here confusion is that we are given only R and theta, not given R1 and R2. R1 and R2 be the perimeter we take to solve this equation easily. So R1 and R2 convert into R and theta. So we draw a normal from point B on OP is this. This is the normal we have drawn here. This is the normal, make angle 90 degree. This point we can say that M point. This point is M. So we solve here the each part as like this. I will solve here. We draw a normal BM on OP line. I will write here, we draw BM, this is the normal on this line. By geometry, OP is equal to OM plus MP. This distance O to P is equal to O to M, M to P. We can write, but OM plus MP is BP. This is OP. Why? कभी भी आप नोट करना, ये पॉइंट ए हो, ये पॉइंट बी है, अगर बी से कोई भी एक लाइन है, सी है ये लाइन, आप नोट करना ज्योमेट्री क्या कहती है। अगर यहां से आप नॉर्मल ड्रॉ कर दोगे, इसका एक्स नाम दे दो, तो ये साइड और ये साइड हमेशा क्या होती है, बराबर हो जाएगी, दोनों की लेंथ बराबर हो जाएगी। अगर हम इस पॉइंट से बी पॉइंट से इस ए सी लाइन के ऊपर नॉर्मल ड्रॉ कर दें, तो ए से बी और ए से एक्स बराबर हो जाती है। तो यहां से भी हमने क्या किया हुआ है, देखो बी से नॉर्मल डाला तो ये वैल्यू पी एम के बराबर हो जाएगी। ये हमने कंडीशन यहाँ अप्लाई की है। जैसे इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे तो आप लोग क्या पाएंगे यहाँ पे, तो हम वैल्यू रख देते हैं ओ, यहाँ हमने कंडीशन रख दी कि बी पी है वो एम पी के बराबर है। एक एक पॉइंट को समझना है ध्यान से, मुश्किल नहीं है। ओपी की वैल्यू देखिए आप क्या है,
ओ से पी, ओ से पी स्मॉल आर, दिस इज आर। ओ से एम हमें निकालना है और बी से पी की वैल्यू है R2। और आप देख पाएंगे यहां से R2 इज इक्वल टू R माइनस ओ एम, ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी। आप ज्योमेट्री का प्रयोग फिर करें, राइट एंगल ट्रायंगल है, आपको दिखाई दे रही होगी राइट एंगल ट्रायंगल MOB, MOB, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल सेलेक्ट कर लें, ये बी पॉइंट है, ये एम पॉइंट है, ये ओ पॉइंट है, यहाँ 90 डिग्री बना हुआ है, ये आपका एंगल थीटा बना हुआ है। आपको क्या कैलकुलेट करना है? ओ एम। तो ओ एम जो कैलकुलेट करना उसको ऊपर लिखेंगे। पता किसका है हमें? हमें ओ से बी इस डिस्टेंस का पता है कि ये डाइपोल का डिस्टेंस है, इसलिए ओ बी। अब ज्योमेट्री लगा, ट्रिगोनोमेट्री का यूज करेंगे। अब यहाँ हमें ये पहचानना है कि ओ एम क्या है। यहाँ पे अगर इस ट्रायंगल को मैं यहाँ जूम करके बनाऊं ऐसे, आप यहाँ से सिलेक्ट करना इसको और देखना, ये बी पॉइंट है, ये ओ पॉइंट है, ये एम है, यहाँ 90 डिग्री बना हुआ है, ये एंगल बना हुआ है। ऐसे ट्रायंगल मैंने अलग से ले ली। और हम सब इस बात को जानते हैं कि जो एंगल होता है इसके सामने परपेंडिकुलर होता है। एंगल जिस छोटी साइड पे बना होता है वो बेस होता है, और इस 90 के अपोजिट में हाइपोटेन्यूज होता है। ये आपकी साइड होगी, आराम से समझ सकते हैं इस तरीके से। तो ये ओ एम क्या है आपका? ओ से एम बेस है। ओ बी क्या है? ओ बी हाइपोटेन्यूज है। तो ये आपका क्या बन गया? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये बन गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? कोस थीटा। तो हम इसको क्या लिख देंगे? कोस थीटा हम इसको लिख सकते हैं और आसानी से हम इसको सोल्व कर लेंगे। मैं लिख देता हूं इसको, ज्योमेट्री ऐसे देख लेना आप लोग, इसको ऐसे समझना है। और मैं यहाँ इसको लिखता हूं कोस ऑफ थीटा। तो यहां से आप ओ एम की वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से। ओ एम किसके बराबर हो गया? ओ बी कोस थीटा। और ओ बी की वैल्यू आपको पता है, ओ से बी स्मॉल ए है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं? ओ एम बराबर है ए कोस ऑफ थीटा। इस वैल्यू को उठा के और कहां रख दो आप? इस इक्वेशन में। जब यहां इस वैल्यू को पुट करेंगे तो आपका R2 की वैल्यू है, R2 इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? R2 R माइनस ए कोस ऑफ थीटा। ये हमें फाइंड आउट करना था। इस इक्वेशन का नाम रख दिया हमने 4 नंबर। R2 हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमारा टारगेट क्या रहेगा? अब हमारा टारगेट रहेगा R1 को कैलकुलेट करना। R1 कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? अब इसी पार्ट को एक्सटेंड कर देंगे हम आगे की तरफ, ऐसे आगे की तरफ एक्सटेंड किया इस साइड को। ए पॉइंट से फिर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे हम। यहां से हम नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे ऐसे करके। जिस पॉइंट पे नॉर्मल डाला उस पॉइंट का नाम रख दिया मैंने एन। ये आपका 90 डिग्री है। सेम वैसी की वैसी सिचुएशन यहां अप्लाई करेंगे हम। तो मैं अब इसको आगे समझाता हूं कि कैसे हम ट्रायंगल लेके सेकंड वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो डायग्राम को देख लीजिए आप। मैं इस डायग्राम की बात करूंगा। अगर हम देखें, क्या किया हमने? वी ड्रॉ ए नॉर्मल ए एन ऑन extended line OP। हमने ये OP जो लाइन थी इसके एक्सटेंडेड पार्ट में एक नॉर्मल ड्रॉ किया है AN। जैसे ही और ज्योमेट्री यूज करो भाई, ज्योमेट्री यूज करें तो देखिए ये जो डिस्टेंस है AP, ये डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा? मैंने अभी बात की थी कि ये ए पॉइंट ले लो, पी पॉइंट ले लिया। ज्योमेट्री को देखना, ये पॉइंट ए ले लिया मैंने, ये पॉइंट पी था, इसको एक्सटेंड कर दिया आपने ऐसे। अगर मैं यहां से नॉर्मल ड्रॉ करता हूं इस पॉइंट पे एन, तो पी से ए का डिस्टेंस पी से एन के डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। तो एपी का डिस्टेंस पी एन के बराबर हो जाएगा, हम ऐसे कह सकते हैं, या एनपी कह लो।
ये हमने सिंपल ज्योमेट्री यूज की है। P से N किसके बराबर हो गया? P से N अगर आप देखें तो O से P प्लस O से N के बराबर है ये P का मान। ये टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक का डिस्टेंस किसके बराबर हो गया? P से O, O से N के बराबर हो गया। AP कितना है? R2। OP कितना दे रखा है? R। ON हमें पता नहीं है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। फिर हम वही राइट एंगल ट्रायंगल का प्रयोग करें। इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी लेंगे? AON। डायग्राम से देख लीजिए, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी आपका थीटा होगा। हमें निकालना क्या है? ON, या मैं ON को निकालना चाहता हूं। पता किसका है? हमें AO का पता है, और वही ज्योमेट्री यूज करोगे तो कोस थीटा के बराबर हो जाएगा। ON की वैल्यू हो जाएगी आपकी A कोस ऑफ थीटा। सेम वैसे का वैसा आंसर आ जाएगा। आप ज्योमेट्री यूज करके देखना। तो आप ये थीटा है, थीटा इस स्मॉल साइड AO पे बना हुआ है, ये तो बेस आपका हाइपोटेन्यूस होगा और ON आपका बेस हो जाएगा। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस कोस थीटा, इस वैल्यू को इसमें रखोगे तो आपका R2 की वैल्यू जो बनेगी, R2 इज इक्वल टू R प्लस A कोस ऑफ थीटा के बराबर हो जाएगा। इस इक्वेशन को आप नंबर 5 कह दीजिए। अब आपको क्या करना? पोटेंशियल इसमें रखने हैं। एक हमें R2 माइनस R1 की वैल्यू चाहिए, एक R1 और R2 की चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं? हेंस हमें क्या चाहिए? R2 माइनस R1 चाहिए। तो R2 माइनस R1 इज इक्वल टू, R2 की वैल्यू 5 इक्वेशन से उठा के रख दो और प्यार से रखो। तो R2 की वैल्यू कितनी है? R प्लस A कोस ऑफ थीटा, माइनस R1 की वैल्यू हो रही R माइनस A कोस ऑफ थीटा। सॉल्व करके देख लो क्या बनेगा। इस वैल्यू में से इस माइनस करके देखो। सॉरी, दिस इज R1, sorry, this is R1 distance, this is R1, this is also R1. So R1 is, this is R1, we write here positive and here we write negative, as like this. Put value, this is R2 and this is R1. R cancel to R, we write as A cos of theta minus R minus A cos of theta. This R cancel to this, it became minus 2A cos of theta. This is the R2 minus R1. One situation is this. This equation is known as sixth equation. अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए R1 और R2 की मल्टीप्लीकेशन। ये फॉर्मूला आप ध्यान रखना, मैं इस फॉर्मूले में पुट कर दूंगा बाद में। अब हमें सेकंड पार्ट में क्या चाहिए? अब हमें चाहिए R1 इंटू R2। R1 की वैल्यू हमें पता है R प्लस A कोस थीटा फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इंटू from equation fifth. R1 value is from equation fifth and from R2 from this is R minus A cos of theta. We write as this is A plus B and this is A minus B, and finally R square minus A square cos square theta. Cos square theta, not cos theta square. ये बात भी ध्यान रखनी है। यहाँ आपका cos square theta है, ये A का स्क्वायर, कोस का स्क्वायर है, थीटा का स्क्वायर नहीं है। कहीं बच्चे ऐसा सोचें कि थीटा का भी स्क्वायर होता होगा, एंगल का स्क्वायर नहीं होता। इस इक्वेशन को आप 7th नंबर इक्वेशन कह दीजिए। जब आपके पास दोनों ही वैल्यू आ गई तो आप क्या करेंगे? अब मैं इसको हटा देता हूं, यहां से मैं यहां वैल्यू पुट करूंगा और वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमें क्या करना है? हमारा टारगेट था नेट पोटेंशियल निकालना, और नेट पोटेंशियल किसके बराबर थी? हमने अभी देखा था कि इक्वेशन नंबर 3 में हमने बना लिया था। तो यहां मैं पोटेंशियल में रखता हूं, पुट वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 6th and 7th इनटू इक्वेशन थर्ड। और थर्ड इक्वेशन आपको जानना है, V इज इक्वल टू, थर्ड इक्वेशन की V इज इक्वल टू K into KQ।
इंटू ऊपर वैल्यू थी R2 माइनस R1, ये वैल्यू हम रख देंगे तो माइनस 2a cos ऑफ थीटा अपॉन R1 और R2 डाउनवर्ड था तो इसकी वैल्यू नीचे रखेंगे तो ये बन गया R स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये आंसर हो गया। इसको और भी आगे सोल्व करना चाहे तो माइनस साइन बाहर ले लो, के क्यू और 2a मिलके क्या बना देंगे p, ये हो गया cos ऑफ थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नेगेटिव साइन क्यों आया। बड़ा अच्छा क्वेश्चन बताता हूं मैं, ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। अगर आपका पॉइंट नेगेटिव चार्ज हमने बी पॉइंट पे लिया और ए पॉइंट पे अगर पॉजिटिव चार्ज लिया है तो इस पी पॉइंट के क्लोज कौन होगा, इसके नजदीक कौन है, ये वाला पॉइंट है, और ये पॉइंट नजदीक है ये दूर है, तो जो पॉजिटिव पोटेंशियल का इफेक्ट है वो नेगेटिव पोटेंशियल के कंपैरिजन में कम हो जाएगा, यानी ये ज्यादा डोमिनेट करेगा और ये लेस डोमिनेट करेगा, तो नेट पोटेंशियल नेगेटिव आएगी। अगर आप इस पॉजिटिव चार्ज को इधर ले लेते हो और नेगेटिव को इधर ले लोगे तो आपका आंसर पॉजिटिव में आ जाएगा, क्योंकि फिर पॉजिटिव इसके क्लोज हो जाएगा और पॉजिटिव क्लोज होते ही पॉजिटिव पोटेंशियल डोमिनेट करेगी, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता नेगेटिव या पॉजिटिव। हियर मैं लिख भी देता हूं यहाँ, हियर नेगेटिव साइन indicate that net negative charge has more effective potential than positive charge इस वजह से नेगेटिव साइन आया। अगर आपका पॉजिटिव चार्ज उधर होगा तो पॉजिटिव डोमिनेट कर जाएगा। अब इसके कुछ केस बना देता हूं मैं, यहां हम केस पढ़ लेते हैं इसी के, यहीं के यहीं। फर्स्ट केस है, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, इसका मीनिंग क्या होगा, और पॉइंट लाई इन और लाई अलोंग, point lie along axial line। देखिए अगर ये थीटा की वैल्यू 0 करनी है तो इस पॉइंट को, पी पॉइंट को इधर लाते लाते यहाँ पॉइंट आ जाएगा आपका, इस पॉइंट पे आ जाएगी, और ये पॉइंट आप देख पा रहे होंगे यहाँ पॉइंट की पोजीशन हो जाएगी P1 की, और ये पॉइंट आपका एक्सियल लाइन है, तो V एक्सियल इसके लिए आपका क्या बन जाएगा, यहाँ थीटा की वैल्यू 0 रखो, cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो ये आपका आंसर हो जाएगा माइनस के पी अपॉन एक्स आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये एक्सियल पे है, अगर आपका नेगेटिव चार्ज की जगह पॉजिटिव लोगे तो ये पॉजिटिव पे पोटेंशियल आ जाएगी। सेकंड केस में लेता हूं यहीं पे, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, सेकंड केस है, देन cos 90 इज इक्वल टू 0, cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और यहां अगर 0 रखेंगे तो v आपकी क्या बन जाएगी, v इक्विटोरियल इज इक्वल टू 0। अब ये पॉइंट अगर आप इस डायरेक्शन में लेके चले जाते हो, यहां लेके चले जाते हो P2 डैश पे, तो आपका एंगल 90 हो जाएगा, और ये इक्विटोरियल पोजीशन है, इस इक्विटोरियल पे यहाँ 90 रखते ही आपकी वैल्यू कितनी हो जाती है 0। तो अच्छी बात ये है कि डाइपोल की जो आपकी इक्विटोरियल लाइन है इस पे पोटेंशियल 0 होती है, जबकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखी थी तो वो 0 नहीं थी। ये आपका आर्टिकल है, इस आर्टिकल को एक बार देख लें। इस पॉजिटिव और नेगेटिव साइन को मैंने बता दिया ये क्यों आया है। मैं अगर इधर पॉजिटिव चार्ज रख दूं, इधर नेगेटिव चार्ज रख दूं, तो आंसर आपका पॉजिटिव में आ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज डोमिनेट करेगा। जो चार्ज नजदीक होगा उसका इंपैक्ट ज्यादा पड़ता है, जो चार्ज दूर होगा उसका इंपैक्ट कम पड़ता है।